Hello friends, today we are going to study about new chapter which is dual nature of radiation and matter. The name of the topic is dual nature of radiation and matter. You know what is radiation? We have seen electromagnetic radiation in 11th class. Okay, in electromagnetic radiation, we have different types of electromagnetic waves such as X-rays, gamma rays, then visible light, infrared, ultraviolet rays. These are all the types of electromagnetic radiation. Radiation have dual nature, particle nature as well as wave nature. In the universe, basically when we see the light, visible light is basically also a type of electromagnetic radiation. Therefore, this radiation behaves as particle as well as wave, which we have studied in wave optics. In wave optics, we have seen that light have dual nature, particle nature as well as wave nature. Then, what we have seen in that chapter, we have seen that when we see about light, initially we see NCT, Newton corpuscular theory. According to the Newton corpuscular theory, the light is consist of tiny particles called corpuscles, and different colors of the light is due to different sizes of the corpuscles. And every source of light emits these particles. That we came to know that this is not appropriate assumptions. There are certain limitations in this theory. Then we have Hygiene's wave theory. With the help of this one, we are able to prove certain phenomena just like diffraction and interference, which cannot be proven by NCT, Newton corpuscular theory. तो हमें बेसिकली पहले एनसीटी पढ़ा, फिर उसके बाद हमने हाइजीन्स वेव थ्योरी पढ़ा, और वेव थ्योरी के थ्रू हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब फेनोमेना प्रूव किए. बट अगर हम आगे कंसिडरेशन करें तो हमें अभी पार्टिकल नेचर भी कंसिडरेशन करना है, which we have to study in this chapter. Therefore, this is what dual nature of radiation. One is particle and another one is wave. But इस टाइम पे जो न्यू आया एनसीटी था, पहले न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, देन फिर क्या आया वेव थ्योरी, एंड देन उसके बाद आया क्वांटम थ्योरी. ओके, ये क्वांटम थ्योरी सबसे पहले किसने प्रपोज किया? प्लैंक्स ने प्रपोज किया, क्योंकि हम वेव थ्योरी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, जो सबसे पहले किसने दिया था? दैट इज गिवन बाय प्लैंक्स. प्लैंक्स ने बताया कि एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, first time Planck stated that energy is in the form of small packets. ओके, और इन पैकेट्स की एनर्जी उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिटरमाइन करती है. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी. फिर अब हम आ गए मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, विच इज क्वांटम फिजिक्स. इसको बेसिक बना के आइंस्टाइन ने इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमें आगे स्टडी करना है कि व्हाट इज दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस इज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी नो दैट इनिशियली वी हैव NCT for radiation, then we have wave theory, and then we have in modern physics we have quantum theory. Is it okay? Then now what is the heart of this? And then at last we have to study about matter, dual nature of matter. Matter always also shows wave nature as well as particle nature. This will be the last. Then what is this photoelectric effect? The photoelectric effect
can be defined as, or the photoelectric effect is a phenomena of emission of electrons from certain substance, specifically metal, when suitable frequency radiations incident on that substance, emission starts. This phenomena is called it as photoelectric effect. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम स्टडी करें व्हाट इज दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन दैट इज कि अगर हमारे पास एक सरफेस है, सपोज दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द रेडिएशन। ये अगर यहाँ पे हिट करता है रेडिएशन तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल जंप आउट, इलेक्ट्रॉन्स विल जंप आउट फ्रॉम द सरफेस when the radiation, the energy of the radiation is given by this radiation has certain energy and this is incident on the surface E. Okay, then when this radiation hit to the surface over here, the electron will jump out, the electron will jump out from the surface. This whole phenomena is photoelectric effect. This whole phenomena is photoelectric effect. But the thing is, this substance should be metal. अगर ये मेटल सरफेस है, उस पे आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट किया और उसमें से इलेक्ट्रॉन जंप आउट होकर बाहर निकल गया सरफेस पे. You know that metal have free electrons. You know that metal have free electrons. And if the energy is of suitable frequency, then this metal will emit an electron from the surface, and this phenomenon is basically called it as, photoelectric effect. This will be called it as photoelectric effect. The thing is, now see over here. पहली तो ये कंसिडरेशन है कि एक मेटल होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए. ओके, अगर एग्जांपल है जिंक और मैग्नीशियम का, अगर जिंक एंड मैग्नीशियम है और एक सेक्टर मेटल की कंसिडरेशन हम करें, तो अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी के, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट होगा. बट जिंक और मैग्नीशियम के लिए सिर्फ विजिबल लाइट होगा, तो इट इज नॉट सफिशिएंट. तो ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. जैसे सपोज वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी है ए, तो ए पे अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, ए हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट थिंग. ओके, ए हर्ट्ज, देन we have to increase this frequency of this radiation, and if suppose you increase this, which is b hertz, then at a certain point the surface will start to emit electron. This phenomenon is called as photoelectric effect, and this electron is called photoelectron. This will be called as photoelectron. एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी मेटालिक सरफेस है, मेटल अलग-अलग हो सकते हैं और अलग-अलग मेटल के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, सूटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए. उस सूटेबल फ्रीक्वेंसी पे ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, उससे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला. तो अब देखो हमारे पास ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन क्या हो रहा है, हिट हो रहा है ऑन द सरफेस. अगर ये फ्रीक्वेंसी वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से कम है, and that frequency is called threshold frequency. उसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, that will be called it as threshold frequency. तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब इसको मिलेगा तो ये सरफेस इलेक्ट्रॉन्स इमिट करना स्टार्ट करेगा. तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब इस सरफेस को मिल गया तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करना लगेगा. ओके, अगर आपको एग्जाम में पास होना है
तो यू नीड मिनिमम 35 मार्क्स। अगर 35 से कम आएंगे तो आप पास नहीं होंगे। जस्ट लाइक दैट, क्या फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ा रहे हो, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, हर मेटल के लिए वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी अलग होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी के बाद ये सरफेस इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगेगा। ओके, फिर आपके माइंड में होगा अभी क्वेश्चन कि ऐसा कोई मटेरियल मेटल है क्या जिसमें अगर हम विजिबल लाइट इंसिडेंट करें, व्हाइट लाइट इंसिडेंट करें, तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है क्या? यस, अल्कली मेटल्स पे अगर विजिबल लाइट भी इंसिडेंट होती है तो उसे सूटेबल फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और फॉर दैट सूटेबल फ्रीक्वेंसी इट स्टार्ट्स टू इमिट इलेक्ट्रॉन। अगर हम अल्कली मेटल्स की कंसीडरेशन करें और उनको विजिबल लाइट में भी अगर रखेंगे तो इस फ्रीक्वेंसी जो है उसको जितनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए उससे ज्यादा है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन इमिट करना स्टार्ट कर देगा। बट विजिबल लाइट अगर हमने इसके ऊपर इंसिडेंट की, जिंक और मैग्नीशियम के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे क्या? नहीं। फॉर दैट वी नीड अल्ट्रावायलेट रेज फॉर जिंक एंड मैग्नीशियम। तो अलग-अलग मेटल्स का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग-अलग होगा। सपोज किसी का 30 हो सकता है, किसी का 40 हो सकता है, किसी का 50 हो सकता है। दिस इज द एग्जांपल। तो जितना मेटल चेंज होगा तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा, वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो this should be a metal which should be a photosensitive metal, okay, जिससे फोटो से उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट हो। So not what we have seen over here. What is photoelectric effect? The photoelectric effect or the photoelectric phenomena can be defined as the emission of electrons from certain substance, especially metal, for a suitable frequency of radiation is called as photoelectric effect, and this emitted electron is called as photoelectron. तो अभी हमको बेसिक समझ आ गया कि किसी भी मेटालिक सरफेस पे अगर उसकी सबकी वैल्यूज अलग अलग होगी, वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है, वो फ्रीक्वेंसी अगर रेडिएशन की हमने उसको प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट होगा, एंड दिस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट substance will be called it as photoelectric effect, and the emitted electron will be called it as photoelectron. This photoelectric effect is the heart of this chapter. अगर आपको photoelectric effect समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा. Now we will see PPT for it. Now see this, the name of the chapter is dual nature of radiation and matter. Initially we will see the dual nature of radiation, and then in later part of the chapter we will discuss about dual nature of matter. The first topic which we have to study in this is the photoelectric effect. Second, experimental setup of photoelectric effect. Observation from the experiments on photoelectric effect. Fourth one is Einstein's postulate of quantization of energy and the photoelectric equation. Fifth one is wave particle duality of electromagnetic radiation. Sixth one, that is photocell. Last one is de Broglie hypothesis. These are the subtopics of this chapter which we have to study in this chapter. Okay, we will see the introductory part which I told you earlier. कैसे consideration हुआ था radiation के consideration में. In 1897, Sir J.J. Thomson found that cathode rays were stream of negatively charged particles, namely electrons. The discovery of electron can be considered as the starting point of the development of modern physics.
मॉडर्न फिजिक्स इज क्वांटम फिजिक्स। तो ये क्वांटम फिजिक्स का स्टार्ट कब हो गया था? 1897 बाय जे थॉमसन। ये कैथोड रे ट्यूब क्या करता था? इलेक्ट्रॉन इमिट करता था। तो कैथोड रे ट्यूब से हम इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते थे। तो आपने पुराने टेलीविजन्स देखे होंगे, मॉनिटर देखे होंगे, तो वो बैक साइड से बड़े होते थे, उसमें भी इलेक्ट्रॉन इमिट करने वाले इमिट होते थे कैथोड रे से, और वो प्रोजेक्ट होते थे स्क्रीन पे, फिर हम इमेज देख पाते थे। बट आजकल एलईडी टीवीज आ रहे हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। उससे पहले जो था वो क्या था? दैट इज एलसीडी, लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आज का जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। Previously we are using this methods. Now photoelectric effect. The phenomena of photoelectric emission was discovered in 1887 by Heinrich Hertz. तो 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने सबसे पहले photoelectric emission discover किया। He observed that spark gap conducts electricity more easily when it is illuminated by ultraviolet light from arc lamp. तो अब यहाँ देखो गैप है, और गैप में जैसे हमने अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट किया तो ये सरफेस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा। तो गैप कवर हो गया ना, और इजीली कवर हुआ अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर। तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इमिट होके जंप करके गया दूसरे के अंदर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट सभी लाइट के लिए ऐसा हुआ क्या? नहीं, फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आया तो करंट मिला हमको, स्पार्क गैप कंडक्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ। हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड इन्वेस्टिगेटेड द फेनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इन डिटेल ड्यूरिंग 1886 टू 1902। और फिर इसको डिटेल में फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन को स्टडी किया। स्टार्ट किसने किया? हर्ट्ज ने। और उसको डिटेल स्टडी किसने किया? हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड इन 1886 टू 1902। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स core of the topic, photoelectric effect. See the definition which I told you earlier. The phenomena of emission of electrons by a certain substance, especially metal, when it is exposed to radiation of suitable frequencies is called as photoelectric effect, and emitted electron are called photoelectrons. When light strikes on a certain light sensitive material, which is metal, it may cause them to give electrons. तो अब होगा क्या? अगर कोई सरफेस है तो उस पे अगर आपने लाइट इंसिडेंट किया और वो मटेरियल जो है वो फोटो सेंसिटिव मेटल है, तो लाइट इंसिडेंट हुई तो उससे इलेक्ट्रॉन पहले तो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? दो पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन विल इमिट फ्रॉम दैट सरफेस और नॉट। अगर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ मतलब उसको सूटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं मिला, और उसको वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा हमें। जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट ऐसे आएगा कि वो सरफेस इलेक्ट्रॉन इमिट करना स्टार्ट करेगा, बट दैट सब्सटेंस शुड बी फोटो सेंसिटिव मटेरियल और मेटल। इट मे कॉज, तो अब उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, और जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको इलेक्ट्रॉन जंप आउट करेगा सरफेस से, दैट विल बी कॉल्ड इट एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे आप कितना भी प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रॉन तो इमिट होने वाले हैं। जैसे पासिंग के लिए 35 मार्क्स है, और अगर की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए, तो अगर हमने किसी स्टूडेंट ने 70 मार्क्स लाया तो वो पास ही होगा। सिमिलरली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी अगर सरफेस पे प्रोवाइड करोगे तो देयर विल बी photoelectric effect, but the thing is the frequency of the radiation should be greater than or equal to threshold frequency. If it is less than threshold frequency, there will be no photoelectric effect. तो वो suitable जो frequency है जिस पे या उसके आगे photoelectric effect होगा, that will be called it as threshold frequency. उससे पहले photoelectric effect नहीं होने वाला। See this sodium metal, light photons are incident on the surface, and when the light incident on the surface, electrons are jump out. ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड दैट मेटल। ये सोडियम मेटल का हमने एग्जांपल दिया है। लाइट फोटॉन्स है,
किस फॉर्म में होता है लाइट क्वांटम फिजिक्स के अंदर? पैकेट्स, ओके, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है। और ये फोटोन पार्टिकल जब जाके सरफेस पे हिट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट आउट करते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब अगर यहाँ पे हम कंसिडरेशन करेंगे तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, और एच न्यू भी बोल सकते हैं हम। ये एनर्जी का फॉर्मूला है फॉर फोटॉन्स, where h is Planck's constant, c is speed of light and lambda is the wavelength। अब अगर हम लाइट की कंसिडरेशन करेंगे जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सी दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which starts from radio waves which have maximum wavelength but minimum frequency। The characteristic of a electromagnetic wave is defined by two things, its frequency and wavelength, and you know that frequency and wavelength are inversely proportional to each other। अगर frequency maximum है तो wavelength minimum होगा, अगर wavelength maximum है तो frequency minimum होगा, because these two are inversely proportional to each other। If one quantity increases, other quantity decreases। As blue light has smaller wavelength than red light, naturally the energy of the blue light is greater than the red light। Obviously यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे तो रेडियो वेव का मैक्सिमम वेवलेंथ है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। और अगर हम यहाँ पे see the arrow, when we are moving from left to right, the wavelength goes on decreasing। It makes a sense that frequency is increasing from left to right। Radio wave, microwave, infrared, visible light, which is a small spectrum, then ultraviolet rays, X-rays and gamma rays। Gamma rays have maximum frequency, then they have minimum wavelength, yes। Then if we see visible light, red light is towards the left, means it have maximum wavelength but minimum frequency। And if we see blue light, it will having higher frequency as compared to red, okay, then minimum wavelength as compared to red। तो अगर अल्ट्रावायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो अब यहाँ पे ब्लू लाइट का स्मॉलर वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी हाई, तो अब वो जब हिट करेगा, ठीक है, नेचुरली उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, बिकॉज एनर्जी इज रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी। जब मैंने आपको क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें क्या बताया था, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड द एनर्जी ऑफ दिस पैकेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी। तो ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसलिए उसका एनर्जी भी ज्यादा है। ब्लू लाइट का एनर्जी और फ्रीक्वेंसी रेड लाइट से ज्यादा है। Now we will see one animation for it। See this, if suppose this is a metal foil, a photosensitive material, and we have a blue light strikes the metal foil, emits the electron। अब ये जो फोटोन है अगर यहाँ इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पे और इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ, उसको सूटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं मिला। And when this metal foil gets the suitable frequency, which is the threshold frequency or above that, अगर इस सरफेस को आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया, क्योंकि ब्लू लाइट की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है सपोज, तो फिर क्या होगा, जैसे आप हिट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी इमिट आउट होगा। जैसे ये फोटोन जाके सरफेस पे हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप आउट करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन जंप आउट करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सी दिस, इट हिट्स टू द सरफेस, इलेक्ट्रॉन जंप आउट्स, इलेक्ट्रॉन जंप आउट्स। व्हेन द फोटोन हिट्स टू दिस मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन कम्स आउट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, इसीलिए वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। जैसे फोटोन हिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन जंप आउट कर रहा है, तो ये इफेक्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी कॉल्ड इट एज फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इट एज फोटो इलेक्ट्रॉन। देन रेड लाइट स्ट्राइक्स ऑन द मेटल फॉइल, फॉइल डज नॉट इमिट द इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी कम है और थ्रेशोल्ड से फ्रीक्वेंसी अगर कम होगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला। तो एज दिस फोटोन हिट्स टू दिस मेटल फॉइल,
since the frequency is less than suitable frequency or threshold frequency, there will be no photoelectric effect. See this, there is no electron emitted from the surface, there is no photoelectric effect over here. Now what we are doing, we are increasing the number of photon particles, मतलब हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, रेड लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ, पहले कितने थे फोटोन, एक फोटोन था, अब कितने फोटोन है, 3 फोटोन है, बट हमने क्या बढ़ाया, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया क्या, नहीं। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं करना है, नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल्स इंक्रीज नहीं करने, आपको क्या इंक्रीज करना है, उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, then and only then there will be photoelectric effect. अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तभी photoelectric effect होगा। See this, now we are increasing the intensity, but we know that photoelectric effect is dependent on frequency, not on intensity. Still no electron is emitted. See this, still no electron is emitted. What happens with brighter, more intense blue light? अब हमने पहले देखा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ब्लू लाइट इंसिडेंट हुआ, एक फोटोन हिट हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। फिर हमने रेड लाइट के लिए कंसीडर किया, बट रेड लाइट को सूटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं मिली, उसका सूटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। बट वहां पे हमने फ्रीक्वेंसी की जगह इंटेंसिटी इंक्रीज किया, मतलब नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल इंक्रीज की। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। देन बट अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी सूटेबल है, बट अब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी। सी दिस, as 3 photons is hit to the surface, 3 electrons are jump out. 3 photon particle is hit on the surface and 3 electrons are coming outward from the surface. तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो करंट भी बढ़ेगा, but the frequency should be greater than threshold frequency. तभी तो आगे का कंसिडरेशन है ना। अगर आप 12th में जो नीट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं है तो फिर आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा क्या, नहीं, फिर वो कोई भी एमबीबीएस हो। ओके, और सी हुई है कि जब हम यहाँ पे फोटोन पार्टिकल्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिनिमम कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से वहां पे कितने फोटॉन्स हैं, 3 फोटॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने इमिट हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे ही करंट बढ़ेगा, बट ये कब एप्लीकेबल है, जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या सूटेबल फ्रीक्वेंसी। As the intensity of blue light increase, more electrons are emitted, but that doesn't work with a red color light. तो अब यहाँ पे फिर से हमने देखा, अभी हमने फोटोन पार्टिकल ज्यादा इंक्रीज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे। जितने फोटोन पार्टिकल्स हिट होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होंगे। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जितने ज्यादा फोटोन पार्टिकल्स उतना ज्यादा इमिशन। अब हमको क्या कंसिडरेशन करनी है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब हमने यहाँ पे कंसिडरेशन किया है। ओके, तो एक बार थोड़ा सा फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। ओके, फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोई भी मेटल है, ठीक है, फोटो सेंसिटिव मेटल है, उस पे कोई रेडिएशन अगर हिट हो रहा है, ओके, अगर सपोज ये रेड कलर या पिंक कलर का, रेड कलर का है, रेड कलर का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कम है, ये हिट हुआ तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा क्या, नहीं। अगर इसने सूटेबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड ही नहीं किया तो नो इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, नो इलेक्ट्रॉन।
and there will be no photoelectric effect. बट अगर मैं इस एनर्जी का, इस एनर्जी क्या है, एनर्जी गिवन बाय द रेडिएशन, ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन है, इसका एनर्जी क्या है, h nu, where h is Planck's constant and nu is frequency. इसको ऐसे लिख सकते हैं, E is equal to h c upon lambda, where c is the speed of light and lambda is wavelength of this radiation. ये रेडिएशन है. अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, and if we get the suitable frequency, then what will happen, अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया by using blue light, और इसको सुटेबल फ्रीक्वेंसी मिल गया सरफेस को, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब आउट होगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया. तो ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये सूटेबल जो फ्रीक्वेंसी इसको मिलेगा उससे क्या बोलेंगे हम, थ्रेशोल्ड. सूटेबल फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन जंप आउट करेगा फ्रॉम द सरफेस. दिस फेनोमेना इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये E मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन. सेकंड थिंग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे. अगर 2 फोटोन पार्टिकल हिट होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे, अगर 10 फोटोन पार्टिकल हिट करेंगे मतलब इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन जंप आउट करेंगे. तो दिस विल बी व्हाट, बाय दिस व्हाट कैन यू से कि द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे. और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इंटेंसिटी से फोटो इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होने वाला, तो इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता. वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिनिमम चीज क्या चाहिए, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, एंड दैट सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो टुडे व्हाट वी हैव सीन, वी कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू electrical energy. Energy in electromagnetic radiation can be converted into electrical energy. Okay, in next lecture we will see the experimental setup for photoelectric effect, which is also very important, which is Hertz experiment. If you have any doubt regarding this, you can ask us on WhatsApp groups. Thank you.